नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कौर बजाज, न्यूयॉर्क के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। सो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आज विशु है, कल बैसाखी थी, और ना जाने और कितने हिंदुस्तान में सारी also अम्बेडकर जयंती, and of course today is Ambedkar Punyatithi today. yes 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 but in any event, जय भीम टू एवरीबॉडी, और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, good news as far as Mr. Modi is concerned, especially with the BJP is concerned। तहावुर राणा को ले आए और अभी मेहुल चोकसी को लाने की बड़ी कवायद हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बातचीत हो रही है। और जहाँ तक के टैरिफ्स का सवाल है जो ट्रम्प साहब ने लगाए थे हिंदुस्तान पे, एक तो 26% लगाए थे, उसके ऊपर अब 90 दिन का मोराटोरियम हो गया है। और ट्रम्प साहब के यहाँ से, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के यहाँ से एक स्टेटमेंट भी आई है दैट ही इज गोइंग टू बी रीनेगोशिएटिंग विद द इंडियंस, which is very good news indeed. So and of course the Waqf Act has become law, and by the way a huge amount of Pasbanda Muslims have actually welcomed the passage of the Waqf Act. Poor Muslims have actually welcomed the Waqf Act. And if you remember, our old friend, our dear friend from Pune, head of the minority cell of the BJP and the RSS, Mr. Ali Daruwala, had actually predicted this would happen. yes yes अली दारूवाला साहब ने ये कहा था कि भाई ये तो होने वाला है, क्योंकि अब जा करके मुसलमानों को मालूम पड़ा है कि ये लोग इतनी जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये कुछ फैमिलीज हैं, 3-4% फैमिलीज जो हैं वो बैठे हुए हैं इसके ऊपर। Kiran Rijiju has blamed the Congress and the opposition that they talked about bloodshed when Article 370 was बिल्कुल। They talked about bloodshed when Ram Mandir was being built, and they talked about big problems after the Waqf reforms bill, and now Murshidabad में जिस प्रकार से हो गए, Rijiju blames the Congress and its allies, and the India TMC. alliance. They say you are responsible for violent demonstrations everywhere, and that needs to be curbed. I mean, you can have demonstrations, but you can't have violent demonstrations that burns houses, making people, families flee from. Right, and at the moment we've got a very distinguished panel indeed. We've got, I think we've got Ali Daruwala Sahab. Yes, Ali Daruwala Sahab, namaskar. He's just out of a boxing match, the way he's. Ali Daruwala Sahab wearing a beautiful yellow mustard shirt. Kamal hai sir. Happy New Year to you, sir. Hemant Kamble Sahab, namaskar. राजीव सर की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अरे why is it that this happens each time? जान करके अली दारूवाला साहब, आपके यहाँ दुश्मन है बहुत, बता रहा हूँ मैं आपको। मगर हेमंत जी भी बोल रहे हैं, उनको भी सुनाई नहीं दे रहा है। हेमंत जी भी बोल रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को सुनाई दे रहा है। सुधीर ढोने साहब, हाउ आर यू? सुधीर ढोने साहब नमस्कार। नमस्कार। आपकी आवाज कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही है भाई। प्रॉब्लम विद द वॉइस। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रदीप जी आप कोशिश करके देखिए, शायद आपकी आवाज जा रही हो। दारूवाला साहब, can you hear me? Only Mr. Bajaj is. अरे डोने साहब, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए बराबर है, बिल्कुल। आपस के उनकी आवाज ठीक है सर। I mean, जी, they can hear each other but they can't hear us. Daruwala Sahab, can you hear me now? A lot of disturbance. Can you hear me now? Yeah, your voice is very, very, very low. Gentlemen of the engineering, can we please correct the voice? Can we correct the sound, please? Have you been able to do it? Will somebody talk to me? Yes or no? हेलो हेमंत कामले साहब, आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं, जबरदस्त। नहीं, हमारी आवाज कभी दबाई नहीं जाती जी। यू हैव अ वॉइस वेरी सिमिलर टू राज साहब, जबरदस्त आवाज है। एंड आई कैन हियर ढोने साहब आल्सो। जी, the only person who can't hear me is Ali Daruwala साहब। Yes. जब भी मुझे अली दारूवाला साहब को very, very soft. अली दारूवाला साहब को जब भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है किसी भी बात पे, तो ये आवाज ऐसी हो जाती है। ये क्या कर रहा है भाई? दारूवाला साहब, अभी आपको आवाज आ रही है? Yeah, loud and clear. Wonderful. So congratulations, you are right. When the Waqf Board amendment became an act, आपने यहां आकर के बोला था कि ज्यादातर मुसलमान जो हैं, गरीब मुसलमान जो हैं, बेचारे जो पासबंदा मुसलमान हैं, अजलाफ और अरजाल मुसलमान जो हैं, वो सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि 32 वक्फ बोर्ड में से जितने भी हैं, कोई 3 या 4 फैमिलीज ने इसको टेक ओवर किया हुआ है, एंड दे आर द वंस हु आर रनिंग इट. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर राइट. सो व्हाट नेक्स्ट, दारूवाला साहब? दारूवाला साहब, व्हाट नेक्स्ट, बोलिए. Correct. Now you're going to see a very big backslash in West Bengal, where Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, is going to twist this as an anti-Muslim bill. जी. And I want to make it on record that this bill has got nothing to do with the religion. It has got nothing to do with the Muslims. It is a pure revenue bill which has come into enact now. They're trying to give it a twist, and only for 2 reasons: that they want to show themselves, forecast themselves as a Muslim Masihas in India. Mamata Banerjee and Stalin, they want to portray themselves as though they are the main Masihas of Muslims and they are the saviors. और अगर हम लोग ने मुसलमानों की सहायता नहीं करी तो ये देश में मुसलमानों को परसिक्यूशन होएगा, उनके ऊपर अत्याचार होएगा और उनके साथ में ना जाने क्या क्या होएगा. ये जो ममता बनर्जी जो ये नैरेटिव सेट कर रही है ना, मैं आपको अकेला कह सकता हूँ, सिंगल हैंडेडली एंड टेक्निकली आई अलोन कैन काउंटर. मैं ममता बनर्जी के लिए मैं अकेला काफी हूँ. You know, but what happened? Kiran Rijiju, Daruwala Sahab, Kiran Rijiju, the Minority Affairs Minister, had said protests are okay, violent protests are being instigated at the behest of Congress and the India Alliance together. Violent protests, which we saw in West Bengal. तो इस प्रकार का violent protest, the Congress is solely responsible because they said Article 370 abrogation, खून की नदियां बहेगी, राम मंदिर पुनर्निर्माण, खून की नदियां बहेगी, और अब वक्फ रिफॉर्म बिल के बाद अब सचमुच वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगा है. दारूवाला साहब, कांग्रेस is behind it. Kiran Rijiju. Yeah, our honorable minister has got a very clear vision. Congress is the architect, Mamata Banerjee is the right hand, Stalin is the left hand, and besides this left and right, there is nothing left in this country. ये India Alliance पूरा खत्म हो चुका है. But now let me tell you very important facts over here. Pradeep sir, Rajiv sir, well, this two spokespersons, these 2 gentlemen, they have got nothing to do with national politics, and they will, I am surely wasting their time over here. Mamata Banerjee has a vote bank of 20% Muslims in West Bengal. The remaining 10-15% are the Bangladeshis which she has got from there, and her full game, the game of India Alliance or the game of this Congress, is just a game of 30 to 33, 34% vote. 50 to 60% people in this country do not vote. These 2 culprits, I call them Deshdrohi, Naxalwadi, urban Naxals, who are surviving by only and only misguiding Muslims. And if the Muslims see through this Shariyantra, which these 2 people have been hacking till now for last 60-70 years, I can assure you that these people will have no place to run. इनको भाग के अपना सर छुपाने के लिए भी इनको जगह नहीं मिलेगी. खैर, बहरहाल आज मुसलमानों को थोड़ा विश्वास मोदी जी के ऊपर हो रहा है. मेरे दलित मित्रों को विश्वास मोदी जी के ऊपर हो रहा है. मुस्लिम्स को और दलितों को इन्होंने वोट बैंक करके यूज किया है, और मुस्लिम और दलित अब जान रहे हैं कि विकसित भारत अगर बनाना है तो एवरीबडी हैव टू गेट ऑन बोर्ड. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, योगी जी, इनकी ईमानदारी से ये लोग ये देश को चला रहे हैं और अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बाजू में रखा है. बहरहाल थोड़ा फाइनेंशियल अपीजमेंट चला है, बात इनकार नहीं कर सकते, जो बहुत गलत है. और ये जो कास्ट सेंसस को अब जो कांग्रेस, उसका जो टाइमिंग अगर आप देखेंगे, ये कास्ट सेंसस को कर्नाटका में लाने का और ये सब जो एक षड्यंत्र चला है, ये एक चीप गटर पॉलिटिक्स है. ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा. द लार्जर पिक्चर इन दिस कंट्री, पीपल आर गेटिंग फेथ, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास दिन ब दिन बेहाल बनते जा रहा है. Wonderful. Sir, let me go across to Dr. Dhone and then I'll go back to Hemant Kamble Saab for an overall analysis. Dr. Dhone,
मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, हमारे यहां पे 32 वक्फ बोर्ड है सर, 32 हाँ 32 वक्फ बोर्ड में से मैं आपको कुछ नाम देता हूं। ये मुसलमान कास्ट है सर, ओबीसी कास्ट है। धोबी, मंसूरी, इदरिसी यानी दर्जी, चूरिहार, मेतर, लाल बेगी, भंगी, हलालखोर, मिरियासी, मुकरी, रंगड़, रईन, अंसारी, इन 32 के 32 अली दारूवाला साहब विल बेयर मी आउट ऑन दिस। दारूवाला साहब सुन रहे हैं ना आप? इनमें से एक भी कास्ट वक्फ बोर्ड का कोई ट्रस्टी नहीं है, एक भी नहीं है। मैंने अभी मोची और अलग लोगों की बात नहीं करी सर। ऑल द वक्फ बोर्ड्स दे वर मोनोपोलाइज्ड बाय द अपर कास्ट अमंग मुस्लिम। कौन? शेख, सिद्दीकी, सैयद, खान, ये सब लोग सर। तो आप मुझे बताइए कांग्रेस इतने साल क्या कर रही थी, ये तो बताओ सर। डॉक्टर ढोने सर ऐसा है, बोलिए सर। अब हिंदू जो मंदिरें है जी वहां पे क्या स्थिति है? ए शाबाश। अभी तक सर बात करी कोई वक्त के बारे में, आप आ गए ब्राह्मण हिंदू बना है? टेम्पल पे। नहीं बना है कोई शंकराचार्य जी। ब्राह्मण छोड़ के कोई बना है आज तक? वहां तो 100% ब्राह्मणों का राज है। जी। हर मंदिर में पुजारी ब्राह्मण, शंकराचार्य कोई भी बन सकता है तो ब्राह्मण ही बन सकता है। जी तो ये तो हिंदू लोगों में है। ये मुसलमान आए कहां से इस देश में? यही के लोग हैं वो। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं वो यही के हैं। पहले हिंदू थे, बाद जी। में कन्वर्टेड हो गए। आज भी उनकी कास्ट चालू है, जो मुझे नहीं लगता है इस्लाम में कई दूसरे देशों में होंगे ऐसे नहीं है, कास्ट। नहीं है। तो ऐसा यही पे है, सिर्फ भारत में है। तो जो कल्चर हिंदू संस्कृति में है वही कल्चर अभी या मुस्लिम संस्कृति में भी चल रहा है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं तो उस उनके विषय में समाज कुछ के- करना नहीं चाहिए क्या? सैयद ब्राह्मण हाँ। हो गए, सैयद ब्राह्मण हो गए, ये सिद्दीकी और बाकी खान मान जो है वो हो गए, क्षत्रिय हो वैसी है, गए। वैसी है जो इस देश, जो हिंदू धर्म में है, जो जी। व्यापारी लोग हैं उनके जी। हाथ में बहुत सारा है, ब्राह्मणों के हाथ में है, जी। जिसको सेठ जी भट्ट जी बोलते जी हैं, हाँ। उनके हाथ में जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस जो है, तो वही फार्मूला इनके मुसलमानों में भी है, दूसरा कुछ ही नहीं है सर। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, सॉरी, कहने का मतलब हाँ। ये हुआ, अभी मैं आपको बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जो है और आरएसएस और उसके जो कर्ता धर्ता है वो आपके सामने बैठे हैं। ये जो है ना, ये पीली टी शर्ट वाले हाँ अली दारूवाला साहब जो हैं, ये पूरी स्कीम ये लेकर के आए हैं। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती जी का जो पूरा वोट बैंक था वो चला गया बीजेपी की तरफ, एक जाटव को छोड़ करके। समाजवादी पार्टी का जो पूरा वोट बैंक था, जिसमें केवट आते थे, कुम्हार आते थे, प्रजापति आते थे, बाकी सब जितने भी लोग थे, वो सारा चला गया बीजेपी की तरफ, यादवों को छोड़ के। आज की तारीख में वही स्कीम अब अपनाई जा रही है बीजेपी और आरएसएस द्वारा। सर जहां तक आपका वोट बैंक है वो जाने वाला है बीजेपी की तरफ। अब आप क्या करेंगे बताइए डॉक्टर ढोने? नहीं ऐसा नहीं होता है सर। एडवांस वार्निंग बोल दीजिए। नहीं ऐसा है, एंड यू कैन थैंक मी लेटर। जी 2019 में 302 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी को। जी 303। 2024 में सर 303 340 पे अटक गए सर। सर 303 तो 62 सीटें कम हुई 5 सालों में। जी। इनका जनाधार बढ़ा नहीं है। और आपको एक बात बताओ, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 31% वोट मिले थे, 69% उनके खिलाफ में गए थे। तो 69% में 9% मुसलमानों के निकाल भी दीजिए तो भी 60% इस देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में 2014 में था। राइट। 2019 में भी क्या परिस्थिति थी कि 38% बीजेपी को वोट मिले, 62% जो है उनके खिलाफ में गए। तो 62% में 9-10% निकालो तो भी 52-53% हिंदू उस वक्त भी बीजेपी के खिलाफ में था। क्या बात और है। आज भी 60% के खिलाफ, 60% से ऊपर ज्यादा हिंदू पेपर में भारतीय बहुत बढ़िया जनता लगता पार्टी है को वोट नहीं कर रहा। दोने साहब आज मोदी साहब ने कांग्रेस पे आरोप लगा दिया कि संविधान को हथियार बना के अब सत्ता को हटना चाहते हैं, सत्ता को मैनिपुलेट करते हैं। आपको अगर मुसलमान प्रेम इतना ही है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मुसलमान क्यों नहीं बनाते हो आप? 50% सीट मुसलमान क्यों नहीं बांटते? मैं पूरा जो मोदी साहब ने बोला, मोदी साहब ने जो आरोप आप पर लगा दिया है कि 50% सीट मुसलमान को दीजिए ना। आप संविधान को हाथ में लेकर
देश का काम, देश के जो ओबीसी है उनके रिजर्वेशंस वगैरह मुस्लिम कम्युनिटी क्यों देना चाहते हो? आप ही खुद तय करो ना, आपके पार्टी से शुरू करो। वो मोदी साहब का आपको ये ज्ञान दे रहे थे, मोदी साहब, दोनों साहब। नहीं, ऐसा है सर कि कांग्रेस के जो है इसके पहले 8 बार अध्यक्ष मुस्लिम बने हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन देश की आज़ादी के पहले बने हैं वो, आज़ादी के बाद में नहीं बने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 8 बार बने। और 7 व्यक्ति है, एक व्यक्ति फिर से बने, 7 व्यक्ति बने हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जहाँ तक ये बात है कि उस वक्त तो कांग्रेस उस वक्त में बने जब कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी समझी जाती थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी समझी जाती मुस्लिम थी। लीग बाद में आई है सर जी, हाँ? बोलिए। मुस्लिम लीग बहुत बाद में आई है, लेकिन आप बोले सर, ठीक है, ठीक है। जी, फिर बोलिए, देश बोलिए। जब आजाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी समझी जाती थी। जी आज भी हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस। ये तो मनुवादी लोग है, हिंदुत्ववादी नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैंने बोला हमारे नेताओं को, दिग्विजय सिंह साहब को बोला है, बहुत सारे लोगों को बोला है कि आप इनको हिंदुत्ववादी मत बोलिए, आप इनको हिंदुत्ववादी बोल के इनको मजबूत कर रहे हैं। ये मनुवादी लोग है। अब ये मनुवादी है, इसका प्रूफ तो उन्होंने दे दिया। अब ये बोल रहे सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म वही है जिन्होंने शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक को नकार दिया था, शाहू महाराज को वेदोक्त मंत्र बोलने से मना किया था, उस वक्त भी मना किया था। और आज उनका जो परपोता है संभाजी राजे, उनकी पत्नी के लिए अभी नासिक में कुछ दिन 2 महीने पहले भी वेदोक्त मंत्र कहने से नकार दिया था कि नहीं, आप शूद्र है, आपको वेदोक्त मंत्र नहीं कहेंगे, आपके लिए पुराणोक्त मंत्र है। तो यही है वो बाबा साहेब को शिक्षा से वंचित रखने का काम और उनको धर्म छोड़ने को मजबूर करने वाला ये सनातन विचार वही है सर। जी दुरुस्त बात है। हम एक हिंदू सेकंड धर्म साहब के ये सनातन जो बोलते हैं ना, सनातन सनातन या आगे अभी सनातन पे जी, एक सनातन सेकंड यानी ये जो है मनुवाद, मनुस्मृति पे आधारित जो धर्म है, मनुस्मृति सनातन का lovely धर्म, book, sir। मनुस्मृति यही है का उनका ऐसे- दिल में सर। आपने पढ़ी है मनुस्मृति वैसे बाय द वे? हाँ, मैंने बहुत सारा अच्छा, पढ़ा है तो उसमें आपने एक्सट्रैक्ट्स मनुस्मृति पढ़े में। होंगे और वही एक्सट्रैक्ट्स पढ़े होंगे जो लेटर इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन वील टॉक अबाउट मनुस्मृति एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। एक छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों को मैं दे दूं, क्योंकि आपने एक बात कही है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो। आपने जो बात कही ना, 8 प्रेसिडेंट बने मुसलमान इसके कांग्रेस के, तो उनके नाम भी बता दें सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। बदरुद्दीन हाँ, ताहिर बोलिए सर, जी, बिल्कुल। बदरुद्दीन ताहिर जी 1887 मद्रास में, रहमतुल्लाह सयानी 1896, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 कराची, सैयद हसन इमाम 1918 स्पेशल सेशन बॉम्बे, हकीम अजमल खान, क्या बात है साहब, 1921 हकीम अजमल खान के नाम से तो रोड भी है अभी, मौलाना मोहम्मद अली 1923 कोकनाड नाउ काकीनाडा, मौलाना अबुल कलाम आजाद sorry in 1923 and he became president the second time in 1940 Maulana Azad, और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी became president in 1927 in Madras. But अब आप बोले सर। all this what Done Sahab has said is before independence. Yes, nobody, undivided, no one after undivided India, independence. undivided India में प्रेसिडेंट बने थे। जी। Done Sahab वही मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद आपके क्यों नहीं, मोदी साहब इसलिए कह रहे हैं, मोदी साहब इसलिए कह रहे हैं कि वो चाहते कि कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट मुस्लिम बने, हाँ। तो बोलने को तैयार कि ये मुसलमानों की पार्टी है। जी। उनके दिल में वो है, वो तो झांसा दे रहे हैं। जो फांसा फेंकते हैं ना, वैसा फांसा फेंकते हैं हमेशा वो। बहुत बार कांग्रेस उनके फांसे में अटक भी जाती है, क्योंकि हमारे पास भी उनके लोग हैं ना सर, बहुत है। राहुल गांधी ने तो बहुत क्लियर है। बोला है हमारे पार्टी में भी उनके लोग हैं। जी हाँ, तो दुरुस्त बात राहुल है। गांधी ने बोला तो हम खुल के बात बोल सकते इस बात को अभी। दुरुस्त बात है। लेट मी गो अक्रॉस टू हेमंत कामले साहब। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, notwithstanding anything and everything, the MNS remains my favorite party. Let's be very very clear. एंड जब भी कोई एमएनएस का कोई भी स्पोक्स पर्सन आता है या कोई भी लीडर आता है, हेमंत कामले साहब तो ही इज अ वेरी बिग लीडर इन हिज ओन राइट। ये डिस्क्लेमर मैं सबके सामने दे देता हूं दैट आई एम ए बिग फैन ऑफ राज ठाकरे। राज ठाकरे साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और राज ठाकरे साहब को मैंने हमेशा सपोर्ट किया है, बिकॉज आई बिलीव इफ देयर इज वन पर्सन इन महाराष्ट्र हु टॉक सेंस, who talks sense and who talks about overall development, और वो वास्तविकता में चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो, वो राज ठाकरे हैं। तो जो भी मैं कहने जा रहा हूं, प्लीज टेक इट इन विच एवर वे यू वांट। दिस इज अ डिस्क्लेमर। नाउ अब आप बताएं हेमंत कामले साहब, ये वक्फ का मैटर
अब उसके बाद आज क्या है, बैंड्रा में एक कत्ल भी हो गया, उसके ऊपर कोई दरगाह को लेकर के। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ सर, रामनवमी की प्रोसेशन पे पता नहीं 3-4 लोगों को काट भी दिया। ये क्या चल रहा है सर? वाई कांट वी फोकस ऑन रियल इश्यूज? असली इश्यूज के ऊपर हम लोग क्यों फोकस नहीं कर पा रहे? हेमंत कामले साहब, अब आप बताएं प्लीज। राजू जी नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप जी आपको हैप्पी न्यू ईयर। Thank you आपका so नया much. साल है, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, thank you. देखिए ये चर्चा की शुरुआत हमारी वक्स पे हुई थी, ढोणे साहब लेके गए उसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितने हुए और सब बातों पर। हमें कांग्रेस की कोई हिस्ट्री जानने की जरूरत है, हमारी जो चर्चा है वो वक्त पे शुरू हुई थी और वक्त जो सब्जेक्ट है ना उसको पकड़ के होनी चाहिए। जी मेरे एक सवाल मेरे जहन में है, इस देश का जो बंटवारा हुआ वो धार्मिकता के आधार पर हुआ था कि हिंदुओं का हिंदुस्तान बना था और पाकिस्तान जो मुस्लिमों का पाकिस्तान बना था। आप कोइंसिडेंस देखिए, जिन्होंने संविधान बनाया आज उनकी जयंती है, जी उनकी थॉट्स ऑन पाकिस्तान ढोणे साहब आप भी पढ़िए, दारूवाला साहब आप भी पढ़िए, शायद पढ़ी भी होगी आपने। देखिए जब पूरा पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान, यह कहना था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कि उन्होंने कहा था कि ये इस तरह के अगर ये नहीं करते, गांधी जी ने जिस तरह का अपना हटवाद पूरा किया उसके वजह से जो चीजें हमने 1947 के पहले जो फील की थी, जो फेस की थी, वही चीजें अब बड़े पैमाने पर हम फेस कर रहे हैं। अब यहां पर मुस्लिमों को हमने यहां पर माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, सब कुछ हो गया। आप संविधान को मानते हैं, शरीयत को मानते हो, सबसे पहली बात। इतना सब कुछ होने के बावजूद वक्त का इतना बड़ा मामला, अब कांग्रेस 1947 से लेके करीबन इन 70-75 सालों में से 50 से 55 साल तो कांग्रेस ने राज किया इस देश पर। जी किया। ये क्या हुआ है कि कांग्रेस ने जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की है, अपीजमेंट की राजनीति की है, इसका जो हम भुगत रहे ना, अब यहां पर बीजेपी को भी ये कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। बीजेपी जिस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहती है इतना आसान नहीं है, उनको भी इसको कहीं ना कहीं फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी अब एक ही जो कॉइन होता है ना, एक ही कॉइन के दो पहलू हो गई है। ये पहले जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, और कहीं ना कहीं अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं मसीहा बनने जा रही है कि मुस्लिमों को भी वो साथ में लेने की बात करे, अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिमों को पहले यह समझना पड़ेगा कि भाई यहां पर आप रहते हो तो इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, ना कि आप शरीयत के कानून मानोगे। कांग्रेस को पहले तो यह समझाना पड़ेगा, कांग्रेस ये समझा नहीं पाई उनको। जो भी 1984 से लेके जो गलतियां की, आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? तो कांग्रेस का होगा। आपने ट्रिपल तलाक के जो शाहबानो केस में जो आपका फैसला आ गया था, उसको राजीव गांधी संभाल नहीं पाए। आपने राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए, आपने रथ यात्रा के, तो ये सब मामले देखिए 1984 से लेकर 1994 ये बीजेपी का राइज होने वाला जो पीरियड है ना, ये राइज करने वाला पीरियड है। 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद 1984 से लेके 94 तो जो भी राइज हुआ बीजेपी का, इसका कारण ना तो बीजेपी को कोई लीडर है, ना उनकी कोई विचारधारा है। इसका एक ही कारण है कांग्रेस, और सबसे बड़े तो राजीव गांधी। अब वक्त की बात होती है तो 51 देश है, 51 देश है पूरे दुनिया में, वहां पर कोई वक्त का नामो निशान नहीं। तो ये वक्त सिर्फ भारत में क्यों? ढोणे साहब आप जवाब दे सकते हो? आप बता सकते हो ये वक्त क्यों सिर्फ भारत में क्यों? अब आप कंपैरिजन कर जाते हो कि भाई हिंदुओं के मंदिरों में ऐसा होता है। मैं मानता हूं कि जाति ये वर्ण व्यवस्था को मैं भी अपोज करता हूं, मैं भी मानता हूं कि यह है। लेकिन जब मामला वक्त का चलता है, यहां पर कितने गरीबों की जमीन यहाँ के हिंदू जो संस्था है या जो भी विश्वस्त है उन्होंने हड़पी है। लेकिन ये वक्त का जो मामला है, आप समझ सकते हो, जो देश बने, एक पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो अब ये संविधान को मानेंगे, शरीयत को मानेंगे? इसका जवाब कौन दे? आप दोगे या दारूवाला साहब देंगे? सर ऐसा है, आपको बताता हूँ, जहां तक कि आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों का वक्फ है, वैसा हिंदुओं की भी है। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में जब रजिस्ट्रेशन होता है
तो मंदिरों की जमीन है, मंदिरों का रजिस्ट्रेशन भी होता है और उसको मानता जैसा हूं बाकी मैं, ट्रस्ट ये मुझे भी पता है। मैंने आपको सवाल ये पूछा, मैंने डोइनो साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दो देश बने तो मुसलमान किसको मानेंगे? इस देश के संविधान को मानेंगे कि शरीयत को मानेंगे? नहीं, देश के संविधान को ही मानेंगे, तो संविधान को ही संविधान का मानते हैं पालन सब। करें। नहीं, उनको क्या हर बात के शरीयत के अनुसार थोड़ी होता है। नहीं मुस्लिम अगर आज शरीयत वो के हिसाब मंत्री से ने कुछ नहीं है, शरीयत के मिनिस्टर हिसाब से दोनों साहब हिंदू जो मुसलमानों कामले के साहब कानून हेमंत जी जो है, पूछ रहे हैं वो इस देश मिनिस्टर में हैं जो जो आपके कानून मिनिस्टर है है, झारखंड में। शादी का कानून उन्होंने कहा कि शरीयत और नंबर डिवोर्स 1 जो है, संविधान उसका बाद में तलाक आता है, तलाक मिनिस्टर का के मुंह से शादी निकला। का। और जो डॉक्टर ढोने, आपने सवाल सुना नहीं सर। देने का या पोटगी बोलते मराठी डॉक्टर ढोने, डॉक्टर डॉक्टर ढोने साहब, सवाल मेरे सुन सवाल का ले। जवाब ये है कि सर, आधा सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उसके बावजूद इतने साल क्यों लगे आपको ट्रिपल तलाक खारिज करने के लिए? आपको इतने साल क्यों लगे वक्फ को खारिज करने के लिए? आपको ये ट्रिपल इतने तलाक कहाँ खारिज जो हुआ? शरीयत के जो कानून है नहीं, उसको नहीं, खारिज नहीं, करने के लिए सर, इतने साल क्यों लगे? क्योंकि नहीं, आपने कहाँ- तुष्टिकरण कहाँ का ट्रिपल- राजनीति की है। सर, आपने वो- जो राजनीति की है वो तुष्टिकरण की। नहीं, आप सर ऐसा है कांबळे साहब, आपको कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया क्या मुसलमानों का? नहीं किया। ये अगर सुनने का है तो आप ओवैसी जी के भाषण सुनिए, आजम खान के सुनिए, अबू आसिम आजमी इनके भाषण सुनिए। इनके भाषण ये सुनने के बाद महात्माओं तो आपको सुनने का लगेगा- मेरे पास वक्त नहीं है, ये महात्मा लोग हैं। नहीं, वो बताएंगे। ये वो महात्मा वो लोग तो हैं, बोलते इनको हैं सुनने कि- का नहीं। मैं कांग्रेस की कोई विचारधारा को तुष्टीकरण सुनूंगा। नहीं है मैं क्यों क्या ओवैसी को कांग्रेस में? सुनूंगा? मैं क्यों नहीं, आजम को सुनूंगा? नहीं, मैं कांग्रेस क्यों ने- आजम खान को नहीं। सुनूंगा? आप मुझे इसलिए मैं कांग्रेस बोल की रहा हूँ। विचारधारा सुनाइए, मैं सुनूंगा। नहीं, मैं वही बता ये रहा हूँ। आप डिबेट सुनेंगे है, तो ये आप- चर्चा हो रही है, कमले साहब, आपके पार्टी का पक्ष रखिए, कामले साहब, ना कि आप आजम खान हमारे और पार्टी ओवैसी के और पक्ष रख रहे हैं। इसका हेमंत कामले जी। मुकाबला कांग्रेस का ऐसा हो और ढोने साहब, एक सेकंड, सर, gentlemen, one second. मुसलमानों के विरोध में 1 सेकंड सर, सर 1 भारतीय सेकंड। जनता पार्टी वाले बोलते हैं डॉक्टर कि- ढोने, अब आप तो ऐसा मत कीजिए ना सर, आधा सेकंड तो सुन लीजिए ना। हेमंत कामले साहब ने जो सवाल पूछा है उसी के तहत प्रदीप जी ने आपसे एक सवाल पूछा। आज ही कांग्रेस के मंत्री हैं झारखंड में, उन्होंने कहा है फॉर अस शरिया इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज आपके मंत्री ने बोला है और झारखंड में। खुलेआम बाद में उसको- उसने भले उसने कहा, मंत्री- बट उसको इमीडिएटली arrest क्वेश्चन कर लेना पूछने वाला चाहिए, शरिया उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। शरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कांग्रेस का है तो कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए सरकार ने कार्रवाई। और उनको बोलिए कि हमारे मंत्री को अरेस्ट करिए। आपके हाँ, मंत्री ने कहा ना कि उसने शरिया गलत- ये इस संविधान देश से में अगर ऊपर कोई- है। जी कहा। कही अभी इस दिग्विजय सिंह से देश आपने में- बात की ना, तो आप करिए। इस देश में अगर कोई बोलता है कि ये संविधान से ऊपर हमारा कानून है, शरिया कानून, तो ये थोड़ी चलेगा यहाँ पे। ये नहीं चल सकता ना। वो उसका मंत्री जो है मंत्री होगा, लेकिन उसका वैयक्तिक मत है, वो कांग्रेस पार्टी का मत है। वैयक्तिक कैसे, मंत्री कैसे वैयक्तिक दे सकते हैं? कामले साहब, वैयक्तिक मत रहता सर। हमारा मंत्री ने सुनिए, हमारे जो माजी मुख्यमंत्री रह चुके लोग, हमने बोला था कि उनका वैयक्तिक मत है, हमारा पार्टी का मत नहीं है। हमने हेमंत जी, बोला था। हेमंत जी आपको पूछता हूँ, आप अच्छे काम कर रहे हो। हेमंत कामले जी मन से अच्छे काम कर रहे हैं। रहता है उनका वैयक्तिक दोनों मत, साहब- वो पार्टी का मत नहीं। हेमंत जी मन से कॉमन मैन के लिए फील्ड पर उतरकर अच्छा काम कर रहे हैं। जहां गुंडागिर्दी कर रहे हैं वहां पर जहां लेडीज को ईव टीजिंग हो रहा है, वहां पर मनसे के कार्यकर्ता पहुंच के न्याय दिला रहे हैं सबको। अच्छा काम हो रहा है, सब जगह अच्छा काम, पानी हो रहा है। मगर आदित्य ठाकरे जी ने आरोप आप पर लगाया कि मनसे इज बीजेपी बी टीम। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि मनसे बीजेपी का बी टीम। ही इज ट्राइंग टू वाटर डाउन ऑल द गुड थिंग्स दैट यू आर डूइंग। हेमंत जी, आदित्य ठाकरे, हेमंत जी, देखिए कैसे ना कि जिनकी टीम ही नहीं है, जिनकी टीम बची नहीं है, हर आए दिन हर 2-3 लीडर उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से हट के अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बर्तन मांजने लगे। तो वहां पर अब कहां बचेंगे? अब बीजेपी की बी टीम, हमें कोई बी टीम और ए टीम बनने में कोई मतलब नहीं है। हमें किसी की ए टीम बी टीम बनने में कोई मतलब नहीं है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की विचारधारा है, हमारी खुद की बाउंड्री है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र के लिए काम करेगी, महाराष्ट्र हित के लिए काम करेगी, महाराष्ट्र के जो भूगोल के लिए काम करेगी, इतिहास के लिए काम करेगी, अस्मिता के लिए काम करेगी, मराठी भाषा के लिए काम करेगी और करती रहेगी। अब कैसे है ना, जिन बाला साहब ने महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के लिए,
ये पार्टी का निर्माण किया था, वो मूल उद्देश्य को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे छोड़ आए और कांग्रेस के मतलब यहाँ पर जाके पहलू में जाके बैठ गए, फिर मराठी भाषा को छोड़ दिया। अब केमचो वर्दी से जिन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया, अब फिर वो किसी आनंद दुबे को लेके मराठी भाषा सिखाएंगे का कैंपेन चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनको पता चला कि ये नहीं होने वाला। अपने फिर से हमें वहीं पर राग आलापना पड़ेगा मराठी का, और ये तो जहां पर अपने विचारधारा छोड़ दी, अब उसी विचारधारा पर लौटना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मनसे पर आरोप किया कि मनसे बीजेपी की बी टीम है। अब बी टीम, ए टीम, सी टीम, ये सब पर आरोप करते रहते हैं, लेकिन खुद जाके कांग्रेस और एनसीपी के पाले में जाके बैठ गए और वहां की गुलामी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वहां पर गुलाम बन गए। तो पार्टी खत्म किसकी हुई? शिवसेना खत्म हुई। दुरुस्त बात। आप विचारधारा के विपरीत गए, हम ऐसे कोई विपरीत विचारधारा के साथ मिले नहीं है ना। हमारी विचारधारा तो महाराष्ट्र से लगी हुई है, हमने कोई पे दूसरा तो कोई हमने आराग आलापा नहीं है ना। महाराष्ट्र की बात करते हैं हम, महाराष्ट्र किसानों की बात करते हैं, महाराष्ट्र की महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ की हेल्थ की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं। इनकी विचारधारा क्या है? आदित्य, तो आदित्य ठाकरे हमारे लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। हम सब्जेक्ट पे बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, और करनी है तो देश की बात करेंगे। आदित्य ठाकरे हमारे लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। We asked दारूवाला साहब, कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस इज ऑलवेज, जब भी मौका मिलता है, कह रहे हैं कि वक्फ रिफॉर्म्स को हम ये बिल को रिवोक कर देंगे व्हेन वी आर इन पावर। आज इमरान मसूद कांग्रेस लीडर बोले आने दो हमको सत्ते में, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वक्फ रिफॉर्म्स को हम रिवोक कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस? एक बार कानून बन गया, लोग, हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ अप्रोच? क्या ये अप्रोच इज getting the entire Muslim community out on the roads and getting them agitated to a violent struggle? किस प्रकार से देखते हो आप दारूवाला साहब? Can the bill, can it be revoked the way Imran Masood and the Congress alliance is saying? Exactly, Pradeep sir, you're a lawyer yourself over here, and let them say, if they say that we will come back to power, we will revoke this. Tell them to revoke Article 370 also. Tell them to revoke triple talaq. Tell them And to revoke 35A. new education policy. Tell them to revoke the यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या करना है करो। यहाँ पर संघ परिवार में सत्ता में हो या नहीं हो, जो भी रिफॉर्म्स लाए हैं, बिल्स लाए, जिसके ऊपर इतनी मंथन करे है, इसके अंदर कोई भी एक बिल दिखा दे मुझे जो यहाँ के नागरिक के खिलाफ है। यहाँ पर तो कहा था सीए, एनआरसी, ये आएगा, मुस्लिम की नागरिकता छीनी जाएंगी, मुसलमान को इंडिया से खदेड़ के बाहर निकालेगा। क्या हो गया बताइए ना मुझे, कौन से मुसलमान के ऊपर अत्याचार हुआ? किससे अपनी नागरिकता के बारे में किसी ने एविडेंस मांगा? हाँ, मगर कर्नाटका में क्या हो रहा है धोनी साहब, अगर आप इसका मुझे फायदा बताइए, जनता भी जानना चाहेंगी। आप कास्ट सेंसस को ला रहे हो, कास्ट सेंसस को लाने से होने वाला क्या है? आपको मालूम पड़ेगा कितने मुस्लिम हैं, कितने हमारे दलित भाई है, कितने यहाँ पर बुद्ध है, कितने क्रिश्चियंस है, उसे आप करने वाले क्या है? When we are going to 21st century, आदमी यहाँ पे चांद पे गया, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, और आप लोग वही 200 साल पुराना कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, ये कम ऑन नाउ धोनी साहब, आई कैन इमेजिन दैट द चिल्ड्रन आल्सो एजुकेटेड इन स्कूल, व्हाई विल दे वांट रिजर्वेशन? आपको ऐसा नहीं लगता है का कांबळे साहेब माझ्याशी संमत होतील का नाही होतील का? मेरिटवरती लोकांना ऍडमिशन मिळावं, मेरिटवरती लोकांना डॉक्टर व्हावा, मेरिटवरती इंजिनिअरिंग, ज्यांना नाही मेरिट आहे त्यांना सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऍडमिशन तिथं त्यांच्या IQ लेवल प्रमाणे मिळावं। मला त्यांना आरक्षण देण्याबद्दल मला वैयक्तिक काय प्रॉब्लम नहीं, पर इन विच एज आर वी लिविंग? अमेरिका के अंदर कहाँ पर आप लोग ने सुना है क्या? मुस्लिम नेशन में भी आपने सुना है क्या मुसलमानों को आरक्षण है, या वहाँ पे दलितों को आरक्षण है, या वहाँ पर जो छोटी समुदाय उनको, किधर भी नहीं है सर। इंडिया में ये है ना, इंडिया को बैकवर्ड लेके जाने की काम चले सर, और आप लोग जो है ना वापस वही डर्टी दारूवाला साहब, let me stop you there and stop this nonsense. Right, दारूवाला साहब, one second gentlemen, one second आप दारूवाला साहब, one question please, सुनने दीजिए। दारूवाला साहब, one second. This is the gentleman from झारखंड जिसका जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया, he is from the JMM, हफीजुल हसन इनका नाम है,
और इनका मैं एग्जैक्ट कोट आपको बताता हूं क्या बोला है इन्होंने, जरा ध्यान से सुने सब लोग। इनसे कल पूछा गया, शरिया हमारे लिए बड़ा है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में संविधान, इस्लाम में शरिया को पहले पकड़ेंगे फिर संविधान को, ऐसा ये मंत्री जी ने कहा है सर। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं दारूवाला साहब, क्या इन मंत्री जी को अलविदा नहीं करना चाहिए झारखंड के मंत्रालय से? ये क्या है सर, आप बताइए। मैं इसका जवाब आपको एक सेंटेंस में देता हूँ। बोलिए सर। बीइंग अ मुस्लिम विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू, ये जो मंत्री है झारखंड के, इनको सिर्फ एक सवाल पूछना है, और आपके माध्यम से, आपके प्रेस्टिजियस चैनल के माध्यम से मैं देश के मुसलमानों को एक सवाल पूछता हूँ, शो मी, मुझे दिखाइए शरिया का किताब, एक भी इंसान ने मुझे दिखाना चाहिए क्या ये शरिया का किताब है, यहाँ पे लॉ और यहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन है और ये हिसाब से हम चलेंगे। एक भी इंसान यहाँ पे मुझे दिखा दे क्या ये बुक ऑफ शरिया है। यहाँ पर मैं आपको डंके के चोट पे कहता हूँ, अगर आप नॉन मुस्लिम भी है, कामरे साहब, दोने साहब, प्रदीप जी एंड राजीव सर, देयर इज नो बुक ऑफ शरिया, देयर इज नथिंग नोन एज शरिया, देयर इज नो मुस्लिम पर्सनल लॉ, देयर इज अ कुरान and there is a life of our Huzur, our Prophet, which has to be followed. There is not a single book that they say that this is the book of Sharia. It's sheer nonsense. राइट। तो डॉक्टर ढोने, आप ये हफीजुल हसन साहब जो हैं आपके पार्टनर हैं सर, कांग्रेस कब रिक्वेस्ट करेगी आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री झारखंड के कि इनको बोलें कि भाई टाटा बाय, कब करने वाले हैं सर ये आप? वो कांग्रेस के कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के है सर? झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ठीक है, फिर हमारा क्या संबंध है? आपका क्या संबंध है? वाह जी वाह, आपके अलायंस पार्टनर है। नहीं ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी का इसमें नहीं है, हम तो बोलेंगे, विरोध करेंगे इसका जी। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जो लोगों के दिल की भावनाएं हम हमारे पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे कि इन्होंने जो बोला है आप उसको बोलिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अभी मैं दारूवाला साहब की कुछ बातों का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। दारूवाला साहब ने बोला कि रिजर्वेशन कोई दूसरे देश में है नहीं। तो सबसे पहले तो जाति जनगणना की जो बात है वो आरएसएस के जो मोहन भागवत जी है उन्होंने भी उसको कबूल किया है कि ये होना चाहिए। आरएसएस की भी भूमिका है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, इस देश में रिजर्वेशन इसलिए है, कर्नाटक में क्या करेंगे, ये करके होने वाला क्या फायदा? तो वो आरएसएस की भी भूमिका है सर। अभी आप अगर आरएसएस के और भाजपा के, तो आप उनको, मोहन भागवत जी के बात को कोई नकार नहीं सकता, विरोध नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री भी बोल नहीं सकते कि भाई वो उन्होंने जो बोला गलत है। ठीक है, उनकी नियत नहीं है प्रधानमंत्री जी के अंदर पार्लियामेंट, आपके वहां के कैबिनेट, वहां के आपके हाउस के अंदर, एक सेकंड सुनिए ना सर, प्लीज 1 सेकंड। आप लोग ये कास्ट सेंसस का जो बिल पास कर रहे हो आप लोग, आपके वहां पे विधानसभा में, ये करके आप करने वाले क्या, ये मैं आपसे जानना वो बताता हूँ मैं सर। हाँ बोलिए, क्या बताता हूँ इसमें सदी में इसका क्या फायदा है कि दुनिया में किसी देश में आरक्षण नहीं होगा। इस देश में जातीय आधार पे जो आरक्षण है वो इसीलिए है कि इस देश में लोगों को वंचित रखा गया कि आप शिक्षण नहीं ले सकते, कि आप क्योंकि ब्राह्मण नहीं है, आप ब्राह्मण नहीं है इसीलिए आप शिक्षण नहीं ले सकते। शिक्षा से वंचित किया गया था। कहीं पुरानी कैसी क्या सर, वो लोगों के ऊपर कैसे, हजारों साल से उनको वंचित रखा गया है, हजारों साल से वंचित रखा गया है। तो 70 साल में आपने रिजर्वेशन की पॉलिसी रखी गई है। ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो इसीलिए है कि वो वंचित रखा गया है, उनको ऊपर लाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। और इस देश में जो मुसलमानों को भी जो रिजर्वेशन मिलता है वो इसलिए मिलता है, वो मोमिन है, वो मोमिन जो है वो कौन है, तो वो ओबीसी के है। तो ये अलग अलग कास्ट के है। अभी कुछ उसमें एससी कैटेगरी के भी है, कुछ आदिवासी भी है, जो बेसिकली जो जिस जात के थे वो जात के लोगों को ही मिलती है। जो हिंदुओं में थे ओबीसी, जो हिंदुओं में एससी थे, ऐसे लोगों को मिल रही है कुछ जगह पे, लाल बेगी वगैरह जो बोलते हैं, तो है ऐसा। तो ये बहुत कम है लेकिन उसका परसेंटेज। तो मुसलमानों को भी जो रिजर्वेशन है वो, क्योंकि वो लाल बेगिया ने मेहतर समाज के, उनको मिलता है। आदिवासी जो है तड़वी, उनका सरनेम तड़वी है, वो आदिवासी है बेसिकली। उनके जो पुराने 50 साल का इतिहास निकालेंगे, 100 साल का उसमें दिखता है।
तो इस देश में रिजर्वेशन की पॉलिसी इसलिए लाई गई क्योंकि इस देश में जात के नाम पे लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था और इनको ऊपर उठाने के लिए ये रिजर्वेशन की पॉलिसी। तो डॉक्टर ढोने और असली बात क्यों नहीं अभी बोलते? सर ये इसीलिए जरूरी है। अभी आपने तो जनगणना नहीं किया सर। डॉक्टर ढोने 2011 के बाद जनगणना होनी थी और 2011 का डेटा भी रिलीज नहीं किया। जनगणना भी नहीं हुई, सेंसस नहीं हुई सर। सर 2011 का डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इट इज नॉट बीन रिलीज। 2011 पे ही चल रहा सर जी, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं सर, दिस में बी एन अनपॉपुलर व्यू। 2021 से लेके 2025 आ गए, 4 साल हो गए, नहीं हुआ। करेक्ट है, लेकिन डॉक्टर ढोने एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता सेशन हो गई हूं, है। मैं फिर चाहूंगा कि उस पर आप जरा रिएक्ट करें। आगे दारूवाला साहब उस पर क्या कहेंगे, हेमंत कामरे जी क्या कहेंगे, मुझे मालूम नहीं है। सर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स विच आर बेस्ड ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ठीक है सर, अब जब तक आपके पास लेटेस्ट बायोमेट्रिक डेटा नहीं होगा तो वो वेलफेयर स्कीम्स आप कैसे अप्लाई करोगे? उसके लिए तो चाहिए ना कास्ट बेस्ड सेंसस, अदरवाइज गेट रिड ऑफ कास्ट। जब तक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है तब तक आपको ये कास्ट बेस्ड डेटा चाहिए होगा। एट द मोमेंट यू आर ऑपरेटिंग ब्लाइंड, आप पुराने डेटा के बेसिस पे जा रहे हैं। सर 1930s में लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। मेरा यह कहना कि वो डेटा अभी तक कैसे लागू हो सकता है? डॉक्टर ढोने आप बताएं। नहीं सर, हकीकत है सर, वही ऐसे ही है सर कि कास्ट, देखिए इस देश में जो कोई भी कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है तो कैसा मिलता है, उस कास्ट का पूरा सर्वे किया जाता है कि इस कास्ट के लोग कैसे रहते हैं, उनका घर कैसा है, अच्छा यानी टीन है, ऊपर से पतरा है या कवेलू है या स्लैब का है, उनके घर में कितने लोग सर्विस पे है, खेती कितनी है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके घर में क्या क्या है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब देखने के बाद जब सरकार को लगता है कि ये समाज गरीब है तो जो कास्ट पे रिजर्वेशन मिलता है वो बेसिकली कास्ट नहीं रहती, वो गरीबी पे ही रहता है। जो समाज गरीब है उसी को मिलता है। बहुत सारे गरीब अमीर समाज जो है वो डिमांड कर रहे हैं हमको भी दो, उनको इसीलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उनका समाज अमीर है। तो इस देश में आदिवासी में कितने अमीर लोग हैं, एससी कैटेगरी के जो समाज है उसमें कितने अमीर लोग हैं। अमीरों की संख्या बहुत कम है सर, गरीबों की संख्या ज्यादा है। Right. इस देश में आप किस कास्ट के हैं उसी बेस पे 90% तय होता है कि आप गरीब है या अमीर है। दोनों साहब बात ये राहुल गांधी जी ने ये आपके एआईसीसी मीटिंग में घोषणा कर दिया है, न्याय पथ उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। बट बात ये बीजेपी का जो आरोप है, हेमंत जी भी बोल रहे थे, शाह बानो में आपका स्टैंड, ट्रिपल तलाक में आपका स्टैंड, आर्टिकल 370 में आपका स्टैंड, राम मंदिर में महाकुंभ, वक्फ रिफॉर्म, सीएए, तो हर चीज में आप जो देश हित के काम है, बीजेपी का कहना है देश हित के खिलाफ आप 20 मिनट में गए, ये इतिहास गवाह है और आज भी वही कर रहे हैं आप। सर आपको एक बात बताओ, बोलिए ना। ये ट्रिपल तलाक का जो है, ट्रिपल तलाक का कानून खत्म नहीं किया बीजेपी ने। वो उन्होंने क्या किया, दिखाने के लिए, हिंदुओं को दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों को कैसी तकलीफ दे रहे हैं। ये जो कट्टरपंथी हिंदू है, पूरे हिंदू नहीं, हिंदू लोग कट्टरपंथी नहीं, बहुत कम लोग हैं, 10% हिंदू कट्टरपंथी है। वो जो 10% कट्टरपंथी हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को तकलीफ दे रहे, वो बिल लाया था। उसमें क्या है, वो इस्लाम में है नहीं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे उन्होंने बंदी लाई थी, दारूवाला साहब को सब मालूम होगा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक झटके में आप बोलेंगे तलाक तलाक तलाक, तो तलाक होता नहीं, उसको टाइम लिमिट रहता है कि 1 महीने के बाद पहला फिर दूसरा, और जब वो टाइम रहता है तो उसमें भी वो जब सर वो वर्बल ट्रिपल तलाक पे बैन लगाया गया है। करेक्ट है, एक झटके में जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वैसा भी इस्लाम में मान्य नहीं है। जी दुरुस्त बात। सरकार ने क्या किया, उस पे बंदी लाई। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, उन्होंने शरीयत का, मोदी जी ने क्या किया, शरीयत का पालन किया, So, कुरान का पालन किया। बस वो मोदी जी कहते हैं मुसलमानों को आप कुरान के पे चलो, शरीयत पे चलो, बस इतना ही किया उन्होंने। So let me ask you this, and then I'll go to Mr. Hemant. दारूवाला साहब बताएंगे सही है। Sir, let me go across to Hemant Kamble. Sir, you are right. Sir, on that there is no, sir, ट्रिपल तलाक के ऊपर कोई बैन नहीं लगा है। वर्बल ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे बैन लगाया गया है because that was illegal. Correct है। इस्लामी है। Now, I want to ask you, the last socio-economic and caste census was held in 2011. उसके पहले भारत में, आजाद भारत में सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। द लास्ट सच सेंसस वाज हेल्ड इन 1931.
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियां जो हैं, गैर बीजेपी पार्टी जो हैं, उन्होंने ज्यादा शोर क्यों नहीं मचाया कि भाई ये डेटा रिलीज कीजिए ना? ये डेटा क्यों रिलीज नहीं कर रहे? क्योंकि पहले ये था कि भाई डेटा स्टिल बीइंग टैबुलेटेड, वो उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो निकाली जा रही हैं। 2014 आ गया, 2015 आया तो कहा कि भाई इसको रिलीज नहीं कर रहे। तो आपको इसके बारे में शोर मचाना चाहिए ना। व्हाई डोंट वी हैव दैट डेटा विद अस? 2011 सेंसस ये रिलीज नहीं किया गया, क्यों नहीं रिलीज किया गया है? अब आप बताएं दोनों साहब, व्हाई? नहीं वो सर ये नहीं चाहते, ये देखिए ये लोग नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के कि इस देश में कि कौन से समाज की कितना प्रतिशत उनकी संख्या है, वो करते हैं भला सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का जिनकी ये पार्टी है, और बाकी लोगों का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते। देखिए सर, वो सर ये बोलते हैं, दारूवाला साहब ने बोला कि कास्ट का कहाँ दुनिया में कहाँ जा रही है, अपन कहाँ जा रहे हैं। आप ये बात भारतीय जनता पार्टी को पूछिए, कास्ट बेस पे आप सब तय करते हैं। वाइस चांसलर कौन बनेगा कास्ट बेस पे रहता है। बड़े बड़े जो बड़े बड़े पद है यूजीसी में, वो कास्ट बेस पे तय होता है सर। और राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर, इन पे कोई सजा नहीं, उनको विशेष विमान से घर तक पहुंचाया गया है। प्रशांत कोरटकर को, वो तो चिल्लर आदमी बोले थे देवेंद्र फडणवीस ने कि चिल्लर आदमी है, उसको विशेष विमान से लेके गए, पुलिस के साथ प्रोटेक्शन के साथ लेके गए। क्यों लेके गए? बाकी तो आप दूसरे का घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। प्रशांत कोरटकर, हेमंत कामले साहब, ये क्या है सर? जी हेमंत कामले साहब, आप रिएक्ट करेंगे इस पे सर? हेमंत कामले साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, स्पेशली विद रिगार्ड टू राहुल सोलापुरकर जी? जी सर, रज्जू भैया छोड़ के आरएसएस के सरसंघ चालक कौन बने गैर ब्राह्मण? बोलिए। कोई नहीं बना, कोई नहीं बना, एक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को छोड़ के। जी हाँ, हेमंत कामले साहब, हेमंत कामले साहब, ये राहुल सोलापुरकर को इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी गई है? अब आप बताएं सर, बोलिए। हेमंत कामले जी। जी मुझे आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। Sir, I think there is a conspiracy against me. हेमंत कामले जी, can you hear me, हेमंत कामले जी? हेमंत जी, आपकी आवाज दबाई जा रही है। 100% सर, I am with you. Yes sir. बात करते हैं, इसीलिए आपकी आवाज दबाई जा रही है। Yes sir. हेमंत जी, राज साहब ठाकरे जी ने कहा कि द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विल बी, अगर मैं सत्ते में आता हूं तो अंबेडकर जी का बहुत बड़ा, द बिगेस्ट संग्रहालय मैं बनाऊंगा। दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू राज ठाकरे जी। इन स्पाइट ऑफ व्हाट द बीजेपी सेज, मैं ये करूंगा, या कांग्रेस उनके नाम पे लेके लोगों का सोच। हाउ डू यू सी राज साहब का स्टेटमेंट, हेमंत जी? देखिए कैसे ना कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, पहली बात तो कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं होता कि वो बाबा साहब आम्बेडकर की बात करे। 1952 में जो पहली इलेक्शन हुई तो नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकसभा इलेक्शन लड़ाया था, जब उन्होंने वो लड़े थे तो उनके हराने वाली कांग्रेस थी। क्योंकि हिंदू कोड बिल पर जो डिफरेंसेस पंडित नेहरू जी के साथ उनके हुए थे, और साथ ही साथ विपक्ष में भी कुछ ऐसे लोग थे, तो वो हिंदू कोड बिल लाने के खिलाफ जो बातें हुई थी, तो उसका बदला कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ऐसे लिया था कि उनको जो नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां से पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हराया गया था। फिर भंडारा में जो बाय इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो साजिश करके उनको हराया था। तो इनको कोई हक नहीं उठता कि वो बंदा कि वो बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम ले। रही बात कि राज साहब ने जो बात कही कि हम कई बार कह चुके हैं कि भाई शिवाजी महाराज के जो गढ़ है उनका संवर्धन करो, उनका जतन करो, उनको डेकोरेट करो, या वहां पर जो आने वाली पीढ़ियां है उनको उनका इतिहास बताओ। यहां पर बाबा साहब आम्बेडकर का जो एक पर्सनैलिटी है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी, उन्होंने उनको डी लीट की जो पदवी दी थी। यहां पर जिस आदमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है संविधान लिखने पे,
तो उनका जो उनके नाम पर जो मॉन्यूमेंट बने, जो भी उनका स्मारक बनेगा, वो क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, सबसे बड़ी वहां पर स्टडी सेंटर होना चाहिए। तो ये उनकी मांग है, ना कि उनका सबसे बड़ा पुतला बनाओ, उसका स्टैच्यू बनाओ। यहां पर हमने शिवाजी महाराज का जो नरीमन पॉइंट में सबसे बड़ा स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 फुट ऊपर बनाने वाले थे, क्या हुआ उसका? देखिए, बात जो होनी चाहिए ना, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब हम यहाँ पर जितनी रिस्पेक्ट बाबा साहब के विचारों की करते हैं ना, तो उतनी गद्दारी कांग्रेस ने की है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाई पॉलिटिक्स है, तो उन्होंने पहले तो जो रामनाथ कोविंद जी को एक चांस दिया, वहां पर उनको एक मौका दिया कि वो देश के राष्ट्रपति बने। वो कौन से कास्ट के थे वो जानने की जरूरत नहीं है। अब द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने एक मौका दिया, वो राष्ट्रपति बनी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ये मौके थे कि आप जिन लोगों की बात करते हैं, जिन लोगों के नाम लेके वोट पाते हैं ना, तो उनको उस सत्ता में सहभागी करना चाहिए था। जो कहीं ना कहीं ये चूक जो कांग्रेस की हुई, वो जो जितनी भी गलतियां हैं वो बीजेपी उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी वो मनुस्मृति का जो लिखा हुआ है उस तरह से ये सरकार चलानी है। लेकिन मोदी जी को ये समझ में आना चाहिए, आरएसएस को ये समझना चाहिए कि ये देश संविधान पे चलता है। तो ऐसी बातों को दूर रखकर मैं समर्थन करता हूं कि रामनाथ कोविंद जी को आपने आगे लाया, आपने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, आपने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। तो ऐसे लोगों को आप सत्ता में लेके आते हो तो उनकी कौम को लगता है कि भाई हमारा कोई तो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। तो ये कांग्रेस को इसमें सीखना चाहिए था, क्योंकि आपके जितनी चली, फिर जवाहरलाल नेहरू चले, उसके बाद इंदिरा गांधी जी चली, फिर राजीव गांधी जी चले, यहाँ पर सोनिया गांधी जी यहाँ पर देश की नहीं थी, इसके लिए उनको ऑब्जेक्शन आया। तो आगे जो चलाना है तो आपको इस तरह की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूंगा और कांग्रेस से भी कहना चाहूंगा, अगर इस देश के जातिवाद को निपटना है ना, तो पहले तो आपके पार्टियों में जो जातियों के नाम पर आधार पर जो सेल बनते हैं ना, ओबीसी सेल, अल्पसंख्यक सेल, तो ये सब बंद कर दीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकमेव पार्टी है जिसकी कोई प्रांत और जातिवार कोई सेल नहीं है हमारे पास। हमारी जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। हमारे पास कोई भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई सेल नहीं है। हमारे यहाँ पर काम के आधार पर सेल है। हमारी कामगार सेना है जो लेबर के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हमारे यहाँ पर लीगल सेल है, हमारे यहाँ पर स्टूडेंट सेल है, बहुत सारे सेल्स है जो हम उनके जो काम है काम के हिसाब से देते हैं। तो दोनों पार्टियों को मेरी अपील है कि आप जाति के और धर्म के आधार पर कोई सेल मत करिए, ये जातिवाद यही निपटा जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी पार्टियां तो देश की मतलब देश भर आपके पार्टियों के जो जड़ है पहुंच चुके हैं। तो आपको दोनों पार्टियों की एक विनती है, एक अपील है कि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने इस देश से जातिवाद को निपटने के लिए काम किया, तो आपने इस बात को गौर करना चाहिए इस बात के कि भाई ये अगर जातिवाद को निपटना है तो पहले तो ये जातिवाद से आपने जो सेल बनाई है ना, उस सेल को खत्म कर दीजिए। कांग्रेस है तो पूरी कांग्रेस ही बनाइए, अल्पसंख्यक का सेल, ओबीसी सेल, पिछड़ी सेल, ये सब बंद कर दीजिए। और ये बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि आपके यहाँ पर भी ये है ओबीसी सेल, अल्पसंख्यक का सेल कराइए ना। भाजपा का कोई मुस्लिम अलीगढ़ वाला साहब की नौकरी खा रहे हैं सर, तो अलीगढ़ वाला साहब की नौकरी आप खाने वाले हैं, लग रहा मुझको, क्योंकि वो माइनॉरिटी सेल के हेड है। बोलिए कमले साहब बोलिए। हेमंत जी आगे जाके तुलसी मेरी बात हो गई बोल के मैंने ये दोनों महानुभावों को मैं अपील की है कि आपके पार्टी तक ये मैसेज पहुंचाइए। एक चीज है सेल पर मतलब जाति प्रांत और ये धर्म के आधार पर ये सेल बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी रखी है। और आई एम कमिंग टू यू सर, आई एम कमिंग टू यू, बट बिफोर दैट आई हैव टू से समथिंग। You know, I can say this without fear of contradiction. I am very close to Bala Saheb Thackeray. और बाला साहेब ठाकरे वॉज वन पर्सन जिनका ट्रेडिशन राज ठाकरे जी ने कंटिन्यू किया है। हेमंत कामले साहब विल बेयर मी आउट। बाला साहेब ठाकरे ने
चुनावी उम्मीदवार चुनने के पहले कभी यह नहीं पूछा इसकी जात क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कंपोजिशन क्या है, रिलीजियस कंपोजिशन क्या है। जो पसंद आया, जो उनको लगा कि यह आदमी हमारे लिए अच्छा काम करेगा, 2 मिनट में हां दिया तेरे को, चल अब खड़ा हो यहां से। सर, आई हैव नेवर सीन सच अ करेजियस मैन एवर इन माई लाइफ। अब दारूवाला साहब, आपको जो बोलना हो बोलिए, बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कामरेड जी से सहमत हूँ कि अल्पसंख्यक ये इंडिया में कैसा हो सकता है। 17, 18, 20% पॉपुलेशन मुस्लिमों का इंडिया में है, तो वो माइनॉरिटी हुई कहां से? मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज वो मेजॉरिटी हो गई है इंडिया के अंदर। तो ये अपीजमेंट, ये माइनॉरिटी, ये जैसा कामरेड जी कह रहे हैं, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मोदी जी है, जो हमारे सर्वसर्वा है ये देश में, मोहन भागवत जी, और जो विचारधारा से मैं आता हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हम लोग एक बात को मानते हैं, ये देश में केवल 2 जाति है, द हैव एंड द हैव नॉट, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, वो उनके लिए काम करती है जिसके पास नहीं है, वो है गरीब जमात। मोदी जी बोलते हैं मैं गरीबों का नेता हूं। तो इस देश में ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, यहाँ पे सिर्फ 2 जाति है, एक अमीरों की और एक गरीबों की। और भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों की सरकार है। अपीजमेंट में हम लोग नहीं मानते। खैर, ये आजकल का एक फैशन है, एक ट्रेंड है, क्या वो हमको फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टी है और कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस है, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी को चलाना है, इलेक्शन लड़ाना है, टिकट देना है, तो चला है, तब तक चला है। मगर मैं खुद आप लोग से कहता हूँ, वी नीड टू मूव ऑन, वी नीड टू गेट अबाउट बोर्ड, एंड दिस इज रियली ब्रिंगिंग एंड ड्रैगिंग आवर कंट्री। ये एक जो फ्रीबीज है, जो यहाँ पे एक जो नहीं कि हम लोग जो लोगों को एक अनुदान देते हैं, वो जाति के आधार के ऊपर, रिजर्वेशन के आधार के ऊपर टिकट्स का देना, और नौकरियों में सरकारी, इसमें ये सब चीज मुझे लगता है सुना और लेकर ये का तो थमना चाहिए। मेरे दारूवाला साहब, काम देना चाहिए। दारूवाला साहब, राहुल गांधी जी नहीं है, उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एआईसीसी में घोषणा की है, उसको बढ़ाओ, 50% से ऊपर ये सेगमेंट को बढ़ाओ। और कर्नाटक सरकार ने तुरंत इंप्लीमेंट किया। कर्नाटक सरकार 51% ओबीसी रिजर्वेशन कर दिया फ्रॉम 32%। राहुल गांधी आगे जाके कह रहा है कि SC ST इक्वल शेयर एज पर द पॉपुलेशन, ऐसे ही बजट एलोकेशन होना चाहिए। आगे जाके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC ST OBC कहां पर है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। राहुल गांधी जी का कहना। दारूवाला साहब, द कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड द रेजोल्यूशंस आर क्लियर, दे विल कंटिन्यू दैट। दारूवाला साहब, So will the good BJP. for them. Let the people see. If they approve of it, they vote for it. If the government comes into power, आप, मैं, कामरे साहब, हम कौन नहीं बोलने वाले? हेमंत कामले साहब, हेमंत कामले साहब, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? ओके, हेमंत कामले साहब, एक चीज मुझे याद आई, बाला साहब ठाकरे इन एन इंटरव्यू टू मी, मुझे अभी याद है, ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दारूवाला साहब सुनने वाली बात है, ढोने साहब सुनने वाली बात है। He said earlier we used to cast our vote. He said this in English. We used to cast our vote. Now we vote for our caste. ये बाला साहब ने कहा. And he said, my Shiv Sena will never do this. Sir, it's available on YouTube. बाला साहब ठाकरे का जो इंटरव्यू है, it is the longest interview is ever given to anybody. So all I am saying is, क्या कांग्रेस इसको फॉलो करेगी सर? ढोने साहब, राजीव जी, वो शिवसेना बाला साहब की थी, अभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। जी जी बोलिए। ये जो शिवसेना बाला साहब की थी, अभी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, जो वोट के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेगी, किसी भी हद पर जाएगी। और जो पिछले 2 या 3 सालों में जो शिवसेना की हालत हुई है, इसका कारण एक ही है कि बाला साहब के विचारधारा से हटके ये शरद पवार और कांग्रेस की विचारधारा में कहीं ना कहीं उनके पहलू में जाके बैठ गए। इसके लिए उनकी हालत हो गई है।
राइट, दोनों I साहब। want to ask कामले जी, राज ठाकरे साहब ने हमेशा इस इलेक्शंस पे एक प्रश्न उठाया था, महायुति विन स्पेशली इन महाराष्ट्र, और ईवीएम पे बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा उठाया। आज कल में हाल ही में तुलसी गाबट, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस यूएस, उन्होंने कहा कि ईवीएम्स इज ससेप्टेबल टू हैकर्स। इट इज अ बहुत प्रश्न, वो क्लीन नहीं हो सकता। ईवीएम्स इज ऑलवेज डाउटफुल, दैट्स व्हाई वी हैव गॉन टू बैलेट सिस्टम। नाउ ये कमिंग फ्रॉम यूएस, हाउ डू यू सी? बिकॉज यहां के सब पार्टीज फिर पॉइंट आउट करने लगा कि ईवीएम्स आर नॉट। हेमंत जी, फिर अच्छी ब्लैक कॉफी बनो ना। हेमंत जी, कैन यू हियर मी? आई कांट हियर। राइट, दोनों साहब बोलिए। क्या मुझे समझा नहीं सर, आपको सर, आवाज नहीं आई थी आपकी। सर, प्रदीप सर, राजीव सर, जी। आप दोनों का आवाज नहीं आ रहा है। सर ये दोबारा कुछ हो रहा है सर, जान करके दोनों साहब- आपके बीजेपी वाले कर रहे हैं सर, ये मैं बोल रहा हूं आपको। तुलसी गाबट यूएस इंटेलिजेंस हेड है, उन्होंने कहा कि ईवीएम पर बहुत बड़ा प्रश्न है, ईवीएम हैकर्स प्रोन है, वो हैकिंग इजीली हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ईवीएम इज ससेप्टेबल टू हैकिंग, तो क्लीन मैंडेट नहीं मिल सकता ईवीएम के माध्यम से। तो यहां पर जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर वो ईवीएम बैलेट बॉक्सेस का चर्चा फिर शुरू हो गया। दोनों साहब, जब नहीं, हकीकत है वो, ये तो है सर, उसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, वो हैक हो सकती है। तो बोले जो एक्सपर्ट लोग हैं अमेरिका के, वो भी मानते हैं, और अमेरिका में भी बैलेट पेपर पे वोटिंग होता है सर। जी, यही देश में है वो जो अभी चल रहा है ईवीएम पे। अमेरिका जैसे प्रगत राष्ट्र में भी बैलेट पेपर पे वोटिंग होता है। तो ये है ना, होता है कि ये हैकिंग हो सकता है। जी। अब जो उसमें के एक्सपर्ट है उन्होंने बोला है कि हैकिंग होता है, और यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी बहुत बार हुआ है ऐसा। अभी तो सरकार ने दिए नहीं जवाब कि वोटिंग, कुल वोटिंग कितनी हुई, वोटरों की लिस्ट कितनी वोटिंग हुई, वो कहाँ जानकारी, कांग्रेस ने बोल बोल के थक गई, लेकिन चुनाव आयोग ने दिया नहीं। इसमें तो अभी तक नहीं दिया, हो ही रही है सर। करेक्ट है सर, वो फिगर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए। हाँ, Which is true. रिलीज नहीं हुई figure। करेक्ट। सो सर चलते चलते आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, एंड आई वुड लाइक हेमंत कामले साहब टू रिएक्ट टू इट, एंड फाइनली दारूवाला साहब। बट फर्स्ट यू सर, मुंबई शहर में, आप तो खैर अकोला से हैं, मुंबई शहर में एक इलाका है धारावी। उस धारावी की रीडेवलपमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली, अभी भी चल रही है। यह कहा गया कि अडानी साहब को फेवर किया गया, अडानी साहब को मानखुर्द में और लैंड दे दिया गया, कहीं और लैंड दे दिया गया इन ल्यू ऑफ दिस। और तो और छोड़िए सर, जितने भी बिल्डर्स हैं मुंबई के, उनको यह कह दिया गया कि 40% टीडीआर आपको अडानी साहब से ही खरीदना है। आपकी दोनों साहब, आपकी जो एमआरसीसी की जो प्रेसिडेंट है वर्षाताई गायकवाड़, वो इस मूवमेंट को लीड कर रही थी अडानी साहब के खिलाफ। राहुल गांधी भी यहां पर आए। तो अभी उस मूवमेंट का क्या हुआ सर? अभी तो थोड़ा ठंडा पड़ गया दिख रहा है मुझे, आप बताएं सर प्लीज। दोनों साहब, सर अभी तो सेशन चल रहा था, इसलिए वर्षाताई गायकवाड़ तो अभी तक 4 तारीख तक तो उधर ही थी, फिर से चालू होगा वो मुद्दा। जी ये तो होगा ही सर, ये तो जबरदस्ती, यानी ये सरकार जो है, मोदी सरकार, राहुल गांधी जो बोलते हैं कुछ गलत नहीं बोलते। 2 लोग है, 2 लोग देश चला रहे, 2 लोग बेच रहे, ऐसे ही है। 2 ही लोगों के लिए सरकार चला रही है, अमीरों के लिए चलाते हैं ये सरकार। जी। इनका है अदानी, अंबानी, मित्तल, पारेख, यही लोग हैं। और प्रधानमंत्री भी जब विदेश में जाते हैं तो इन्हीं लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिला के आते हैं। तो यही है सर, इनके लिए काम हो रहा, गरीबों के लिए कुछ नहीं काम हो रहा, ऐसे ही है। दोनों साहब मैं आपको ये पूछ तो रहा हूं, अमित शाह रहेगा, ये लड़ाई तो चालू रहेगी सर। अमित शाह जी रायगढ़ में आए थे, उदयनराजे भोसले जी ने फिर वो प्रश्न उठाया वाघिया के मूर्ति, वाघिया स्टैचू के बारे में। उदयनराजे ने कहा कि अगर वाघिया का स्टैचू है तो मावलाओं का स्टैचू क्यों ना होना चाहिए, मावलाओं का स्टैचू क्यों नहीं है? दोनों साहब, क्या उदयनराजे का प्रश्न? ये सर, ये तो अभी वो जो वाघिया कुत्ते की जो समाधि है कुत्ते की, वो ये राम गणेश गडकरी इनके कहने पे हुआ था सर ये। और वो जो कुत्ता है वहां बैठा है वो फॉरेन का है, यहाँ का नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि होलकर फैमिली ने दिए थे, होलकर फैमिली ने पैसा दिए थे, लेकिन वो कुत्ते के लिए नहीं देते, शिवाजी महाराज के लिए। इस देश में कुछ लोग आरएसएस के विचारों के ऐसे हैं जिनको शिवाजी महाराज उस वक्त भी चले नहीं और आज भी नहीं चल रहे सर।
तो ये इनकी तो लड़ाई पहले से शिवाजी महाराज के खिलाफ में थी। उनके स्वराज्याभिषेक से लेके तो कल के कोरटकर तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके विचारों के जी। जो शिवाजी महाराज के खिलाफ में है। और गडकरी ने जो लिखा है, राम गणेश गडकरी, इन्होंने बहुत खिलाफ में लिखा है शिवाजी महाराज के। और उनकी आइडिया थी वो कुत्ते की समाधि जो बनाना है। ये शिवाजी महाराज की तुलना कुत्ते के साथ करना चाहते, इतने बदमाश लोग हैं सर। ये शिवाजी महाराज क्या का बात है। जिजामाता का बहुत चरित्रहनन किया। जी। सोलापुरकर का आप इंटरव्यू पढ़ेंगे ना, उसने इस तुच्छता के साथ बात की है। सोलापुरकर ने कि शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हुए इतना तुच्छता से बात की है, तो उसके दिल से नफरत शिवाजी महाराज के प्रति दिख रही थी सर। Right. ऐसा है। So let me go across to हेमंत कामले के साहब। खिलाफ में है सर। उसने तो बोल दिया कि तुम्हारा शिवाजी भाग गया था। कोरटकर ने क्या बोला, तुम्हारा शिवाजी भाग गया था। यहाँ बोले तुम्हारा हमारा क्या है इसका राइट, so let me go across to हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब आदमी है सर कोरटकर जी, हेमंत कामले साहब स्पेशल विमान से लेके जा रहे सुरक्षित उनके घर जी, तक। हेमंत कामले साहब, योर रिएक्शन सर, सिक्योरिटी लगाएंगे उनके घर के सामने। योर रिस्पॉन्स सर, हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले जी, योर कमेंट सर ऑन शोलापुरकर एंड कोरटकर, आपका रिस्पॉन्स सर। नहीं, ये कोरटकर सोलापुरकर ऐसे फालतू लोगों पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जो आपने धारावी का मुद्दा उठाया जी, था। प्लीज और उसी कंसेप्ट में कहूंगा कि दारूवाला साहब ने कहा था कि मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है। तो मैं एक समझ सकता हूं कि यहाँ पर दलित और पिछड़े दो ही लोग हैं, एक है अंबानी और दूसरा अदानी। इसके लिए जो काम कर रहे हैं वो इसी तरह से काम करते रहे कि ये जो दो पिछड़े और दलित, ये जो है अदानी अंबानी, इनकी पूरी तरह से तरक्की हो जाए। क्योंकि अदानी को जिस तरह से ये धारावी का जो प्रोजेक्ट दिया गया है, करीबन 600 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और उसके बदले में उनको मुलुंड में जमीन दी जा रही है, यहाँ पर दहिसर में जमीन दी जा रही है, मलाड वेस्ट में जमीन दी जा रही। तो ये कहीं ना कहीं परमानेंट ट्रांजिट कैंप बना के वहां के धारावी के लोगों को शिफ्ट करेंगे, और धारावी का जो प्रोजेक्ट है वहां पर कमर्शियल ये करेंगे, जो इमारती खड़े करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पर्टिकुलर जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। पिछली हमारे डिबेट में भी मैंने आंकड़ेबारी आपको दी थी कि भाई यहाँ पर कैपिटा इनकम में हम 147 स्टैंड करते हैं, आउट ऑफ 198 कंट्रीज में 147 स्टैंड करते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है देखिए, और यहाँ के जितने भी बिलियनर्स है उसमें हम तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर अमेरिका, दूसरे नंबर चाइना, तीसरे नंबर पर हम। right. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं कहीं ये जो विषमता दिखाई दे रही है, इसको करेक्ट करने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो ठीक है, नहीं तो ये 303 से 240 पे आ गए और एक दिन कहीं ना कहीं 140 पर पहुंच जाएंगे। तो इस डिबेट की अंतिम छोर पर मैं यही कहना चाहूंगा, जो गलतियां कांग्रेस ने की ना, वो गलतियां कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। जो कर रही है उसको सुधारे वक्त पर, नहीं तो 2029 में वापस सत्ता में आने की आप सपने भी मत देखिए। ये आपके लिए आई ओपनर था। 2024 का जो इलेक्शन था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आई ओपनर था। ये आपके लिए एक सिग्नल है कि आपकी नीतियां गलत चल रही है। आप जिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी मींस मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये जिस बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर रहे हो ना, जो पॉलिसीज के लेकर, तो कहीं ना कहीं ये आपको विनाश की ओर लेके जा रहा है। आपकी पार्टी जो 240 पर पहुंची है, ये 140 पर ना पहुंचे, इस हिसाब से आप पॉलिसी बनाइए, नहीं तो 2029 में ये आपको पिछड़े दिन दिखाएंगे, इतना जरूर है। Right, Daruwala Sahab, your final comment, sir. What do you think? We noted, I listened to Mr. Kamble sir, very ध्यान से मैंने उनकी बात सुना. I was listening to him very carefully, and definitely I will not support what he feels that Adani ji and Ambani ji को हम लोग support कर रहे और उनको forefront पे लाना चाहते. But little bit that I know about Adani ji's work, and I met a certain people, and the way the work is being done in the Adani group so professionally, and that company is going so ahead, and if India can benefit transparently, India should benefit, and India should benefit very transparently.
And people like Kamlesh ji or Dhoni ji, if they can be taken onto board and made to understand that there is transparency, no underhand dealings have taken place, and if they feel that something like this is happening, if they feel that Adani, Ambani are given undue favors, there is always the Honorable High Court and Supreme Court. They can ask for redressal. I can assure them, and through this channel, I can assure the citizens of this country, ड्यू डिलिजेंस को पूरा फॉलो करके हाईएस्ट बिडर को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं धारावी का, उसके अंदर अगर कोई एम्बिग्विटी है, इट विल बी आयर्नड आउट, नॉट अ सिंगल आयोटा ऑफ डाउट विल बी लेफ्ट. आई कैन अश्योर यू कि आज कुछ है वहां पर, आप लोग को वहां पे समाधान नहीं है. अडानी जी विल मेक श्योर दैट ऑल दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट. Regarding the ports, what I met certain people, the work and what the force Adani is going ahead, India को front runner बनाने में ये दो कंपनी का हाथ है. I can assure you मोदी जी को कुछ किसी से लेना देना नहीं है, उनका किसी के साथ में कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है. भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विद डिफरेंस. अगर कुछ रहता तो 11 साल में अभी तक ब्रेकिंग न्यूज एक टीवी के ऊपर पट्टी चलती थी, ये कांड हुआ, ये ब्रेकिंग न्यूज हुआ और ये करप्शन हुआ. आज तक ऐसा नहीं हुआ है. यू पीपल आर अ फ्री कंट्री. अगर कुछ भी लगता है तो आप लोग कोर्ट को अप्रोच करो. अडानी एंड अंबानी आर वेरी गुड फॉर दिस नेशन. दे आर नॉट हियर टुडे, दे आर नॉट हियर यस्टरडे. उसको 10 साल पहले की कंपनी नहीं है. ये कांग्रेस के वक्त में भी यहाँ पे बाला साहब ठाकरे जी के वक्त में भी ये कंपनी चलते थे और ये कंपनी ग्रेजुअली ग्रो हुई है और आज ये दर्जे पे पहुंची है. खैर कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण करने का. हेमंत कामले जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेमंत कामले साहब आप कुछ राजीव जी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल एपिसोड आप रखिए, एक डिबेट रखिए कि भाई जो मोदी गवर्नमेंट का जो रुख है उद्योगपति की तरफ, अदानी अंबानी, ये स्पेशली ये दो नाम लूंगा, तो आज स्पेशल एक एपिसोड कराइए कि हम देखेंगे कि ये मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये किस तरह से फायदेमंद होती है सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए. इसके स्पेशल एपिसोड रखिए, उस पर डिबेट करेंगे. ऑस्ट्रेलिया में गए थे मोदी जी सर ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो सिर्फ इसलिए गए थे कि उनको कोयले की खदान दे दो, इतना कहने के लिए गए थे वो. हमने पूरा देखा है ऑस्ट्रेलिया के जाने के बाद प्रधानमंत्री के दौरे का फलित क्या है, क्या सक्सेस है. कुछ हस्ताक्षर नहीं हुए. मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और आपके राजीव गांधी जी इटली जाते थे बोफोर्स लेने के लिए. जी राइट, थैंक यू. ये कोयले के दलाली में सबके हाथ काले हैं. तो राजीव गांधी तो मैं इसीलिए कहता हूँ एक मतलब प्रधानमंत्री देश में कांग्रेस और बीजेपी में वैसे कोई फर्क नहीं है. It was Congress and this is the saffron Congress. That was the tricolor Congress. This is the saffron Congress. Right, wonderful. Right, Darwala Sahab, you're very good definitions every day. Thank you, Rajiv sir. Thank you, gentlemen. Thank you. Great pleasure. Happy New Year again to everybody. Namaskar. धन्यवाद. Namaskar. दारोवाला साहब तुमसे ही धन्यवाद. नमस्कार. थोड़े साहब नमस्कार. प्रदीप जी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Thank you, sir. राजीव जी Thank you so much. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. Thank you, sir. Thank you very much. That was nice. Finally, we got some color into the show towards the end. Yes. I knew Mr. Adani would generate enough emotions. Whatever it is, all I'm saying is what has happened to the agitation. That's what I'm asking. So what? If Varshatai Gaikwad was in the Lok Sabha, the Congress still exists here. ऐसा थोड़ी कि वर्षाताई गायकवाड़ जब तक लीड नहीं करेंगी तो नहीं होगा. अच्छा काम कर रही है वैसे, ऐसी बात नहीं है. अमंग दी न्यू वंस, अपने जो नए जो बने हैं, क्या नाम सर उनका, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूं उनका, सबकाल जी. हाँ, वो सबकाल जी जो है MHCC के जो हेड है, महाराष्ट्र प्रदेश MPCC के जो हेड हैं वो, और वर्षाताई गायकवाड़ जो MRCC की जो हेड है, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं. The last news that we got from Dharavi was when Devendra Fadnavis announced that all the ineligible from Dharavi will be accommodated in a rental housing for 12 years. And we never heard any opposition to that, nor we heard the Congress. कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. None. After that, nobody really spoke on this topic. तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, जिन का अभी हम लोग नाम ले रहे थे, हमारी आम आदमी पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व थी, ये भी थे, शिवसेना भी थी, सबकी मीटिंग हो गई क्या मतलब गौतम अडानी जी के साथ? तो मतलब इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, हो सकता है.
मैं उम्मीद करता हूं कि धारावी के जो लोग हैं, जो बेचारे एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपेक्षा उनकी ये थी कि ये राजनीतिक दल जो हैं वो उनके साथ रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो तितर बितर ना हो जाएं, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड वी रिक्वेस्ट द अडानी ग्रुप काइंडली टू बी फेयर, दैट्स ऑल दैट वी आर सेइंग। Please be fair to the people who are living over there, because do remember that's a huge industrial hub. That's a hub of micro industries. प्रदीप जी, MSMEs का हब है वो धारावी जो है। और वो कहाँ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लंदन में, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ सर, सोहो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था 30 साल पहले। सोहो डिस्ट्रिक्ट was known for prostitution, it was known for cabarets, it was known for strip shows and so on and so forth. Today Soho is the art district of London. It's become one of the go-to districts for every tourist who comes over there. So I hope Dharavi will be converted into something like that. और जो MSMEs हैं वहाँ पे, उनको एक प्रॉपर जगह दी जाएगी यहीं पर as is various basis पे. I hope they will not be sent to Mankhurd or somewhere like that. There was an adjoining Dharavi Creek, you know, Gee. where people used to dump all the kind of things they could. All the waste was dumped out there. I hope, you know, entire cleanup takes place. And I hope so it too. becomes, environment becomes friendly, it becomes a lot of... So one thing is very clear. Fair. प्रदीप जी, एक चीज तो बहुत क्लियर है, हम जहाँ बैठे हैं बीकेसी में, एक नया बीकेसी बनने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, Exactly. 5 साल के बाद आप देखेंगे बिल्कुल ऐसी स्टील और ग्लास की बिल्डिंग्स होंगी हर जगह पर, एंड द ओल्ड धारावी वुड बी फॉरगॉटन. दैट्स व्हाट इज गोना हैपन. दैट I have no doubt will happen, but in the meantime, as far as the people are concerned, I hope they get their due. I hope they get whatever they have worked for so far. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. Pradeep ji, और कुछ कहना चाहेंगे आप? Any development for any matter is good for the country. That's right. And along with that particular development, everybody, as you say, everybody should be carried along with that. That's right. The poor, the unheard of, the silent. Sir, You carry every everybody Indian. Then मेरा ये कहना है, that धारावी makes का, the balance very. प्रदीप जी, धारावी का जो भी रहीवासी है उसको शेयर होल्डर होना चाहिए इस विकास में. मेरा ये कहना है. हम विकास की बात कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना. बिल्कुल. तो इस डेवलपमेंट में जो धारावी के रहीवासी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं धारावी के, दे शुड ऑल्सो बी शेयर होल्डर्स इन दिस डेवलपमेंट. मिस्टर अडानी इज गोइंग टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड ही शुड. व्हाई नॉट? I mean, tens of thousands of crores. That sounds great. But all the other folks, the small, the little guys, they should also feel कि यार ये हमारा है. That's for us. मैं ये मान करके चलता हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ गौतम अडानी जी क्या मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो तो ऊपर वाला जाने, या गौतम अडानी साहब जाने. मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसी प्रकार काम करेंगे, और जैसे वर्षाताई गायकवाड़ हैं, जैसे उद्धव ठाकरे जी हैं, और जैसे बाकी जितने भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस एजुटेशन में. Does the Aam Aadmi Party exist now or not? I don't quite remember. I don't quite remember in Mumbai. लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन सब लोगों को मिलकर के, कांग्रेस के, एनसीपी शरद पवार was also involved if you remember, जितने भी लोग हैं सब मिलकर के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे लोगों के लिए. मैं उम्मीद यही कर सकता हूँ. खैर, as far as we are concerned, we'll get you news and development of Dharavi on a regular basis. That's it, because it's a huge area and concerns everybody. Well, that's just about it in tonight's show. आज विशु है, प्रदीप जी का नया साल है, हमारा भी नया साल है, सबका नया साल है. Yes. कल बैसाखी थी, हम लोगों का भी नया साल था. आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हार्वेस्ट लाए, बहुत अच्छी फसल हो, कंटेंटमेंट लाए, हैप्पीनेस लाए. मतलब वो क्या है, वो एक गाना है ना, क्या है वो, प्यार बांटते चलो. मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इस नए सीजन में सबको प्रॉस्पेरिटी मिले, खुशहाली मिले. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप हाँ जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. मैं सोच रहा था पता नहीं कब घंटी बजाएंगे, तो अभी घंटी भी बज गई है 2 या 3 बार, तो आप जरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. Fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, and the only channel, by the way, and I can say with the greatest of pride for both Pradeep ji and myself and the entire team, that tells you the truth. यहाँ पर सच के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता साहब. जो सच है वो आपके सामने है, सीधी सादी बात है. This is the truth. That's it. It is the most truthful channel and it is the people's channel. ये प्लेटफॉर्म जो है
ये लोगों के लिए है, याद रख लीजिए। यह आपका प्लेटफॉर्म है, हमेशा यहां पे आपकी बात होती है। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय। Bharat Mata Ki